This is for class 10. Chapter is life processes. Now we know what is nutrition, right? But the nutrition is different in different animals. We have seen two types of nutrition also, autotrophic and heterotrophic. In heterotrophic also we have seen parasitic, saprophytic and holozoic nutrition. Why there is different kinds of nutrition, heterotrophic nutrition also? Because different organisms eat different kinds of food, and the ways also they procure food, the ways are also different. That is why different digestive systems are present in different animals. So these are the different animals. Their way of procuring food is also different, like amoeba, paramecium. These are unicellular organisms. Then human beings, ruminants, that is cow, buffalo, goat, all these animals. Then hydra, spider, frog, insects. So all these animals, all these organisms have different ways of procuring food. So let's study about this first organism, which is amoeba. Okay. So nutrition in amoeba. Okay, so amoeba is a unicellular organism, right? And it lives in water. So an amoeba eats tiny plants and animals as food, which floats in water in which it lives, right? मतलब पानी में जो छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको वो अपना खाना बनाता है, right? So the mode of nutrition in amoeba is holozoic, right? In ingesting food through mouth is called as holozoic nutrition. अब अमीबा का मुंह कहाँ है? Okay, so that we have to see. अब होता क्या है देखिए. See the first diagram. This is amoeba. Shapeless है, कोई भी एक definite shape उसका नहीं होता है. देखिए जब कोई भी food particle, tiny food particle उसके vicinity में आता है, इर्द गिर्द आता है, तो what it does is एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया, राइट? और जो फूड पार्टिकल है उसको वो एनगल्फ कर लेता है इनसाइड इट्स बॉडी, राइट? तो देखिए फूड पार्टिकल जो है वो उसके बॉडी के थ्रू दिस सूडोपोडिया स्ट्रक्चर इट हैज एंटर्ड इट्स बॉडी, राइट? अब इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस. अगर आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस मतलब इंजेस्टिंग फूड इनटू द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, राइट? अब एक बार ये फूड पार्टिकल बॉडी के अंदर आ गया, सो व्हाट विल हैपन? हमको पता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है, ये जो फ्लूइड होता है उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. तो एंजाइम्स जो होते हैं एज सुन एज द फूड पार्टिकल एंटर्स इट फॉर्म्स अ वैक्यूल ओवर हियर. वैक्यूल, फूड वैक्यूल बनता है, राइट? और जो एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में दोज विल एक्ट ऑन दिस फूड पार्टिकल, राइट? एंजाइम्स के एक्शन के वजह से व्हाट विल हैपन? दिस फूड पार्टिकल विल गेट डाइजेस्टेड, राइट? सो डाइजेस्टेड फूड, राइट? अब ये फूड का यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस हो गया है ड्यू टू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, राइट? अब होगा क्या? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ओनली जितने भी न्यूट्रिएंट्स है फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड they will diffuse within the cytoplasm of this organism, right? The food will be, or the nutrients or the digested food will be absorbed directly into the cytoplasm of amoeba cell by the process of diffusion, right? अब ये जो absorbed food है which is absorbed into the cytoplasm, some part of it will be used to obtain energy to perform different activities of the cell, right? And the remaining part of the digested food is, or the absorbed food is used to make parts of amoeba for growth. So थोड़ा पोर्शन एनर्जी के लिए यूज होगा एब्जॉर्ब्ड फूड का, और थोड़ा जो पोर्शन होगा वो ग्रोथ के लिए यूज होगा, सो दैट द साइज ऑफ अमीबा ऑल्सो ग्रोज. Then what will happen?
अब डाइजेशन के बाद कुछ वेस्ट भी जनरेट होगा. अब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेस्ट जब जनरेट होता है, राइट, सो देन व्हाट विल हैपन, it has to be thrown out of the body, so undigested food thrown out, राइट. एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस, वो भी एक वैक्यूल में ही स्टोर्ड होता है. जैसे हमने फूड का वैक्यूल यहाँ पे निकाला है, वैसे ही यहाँ पे वही वैक्यूल में वेस्ट होगा, क्योंकि जो एंजाइम्स एक्ट करेंगे तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो फूड पार्टिकल में, दोज विल बी एब्सॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट ओनली. सो वो भी एक वैक्यूल के फॉर्म में ही होगा, और धीरे धीरे करके कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वेस्ट जब जमा हो जाएगा इन द फूड वैक्यूल और इन द वैक्यूल, देन इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द body of organism, and that process is called as exocytosis, राइट. हमने एंडोसाइटोसिस में भी 2 टाइप्स पढ़े हुए थे, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस. इफ यू रिमेंबर, पिनोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग एंड फैगोसाइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ईटिंग. तो यहाँ पे जब फूड पार्टिकल एंटर होता है, सो इट इज एंडोसाइटोसिस ओनली, लेकिन किस टाइप का, फैगोसाइटोसिस होता है. फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग, बिकॉज सॉलिड फूड पार्टिकल इज एंटरिंग, राइट. अगर वही पानी होता, अगर लिक्विड, अगर सॉल्वेंट का कोई पार्टिकल या मॉलिक्यूल होता, तो दैट वी वुड हैव कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस. ओके, सो दिस इज हाउ न्यूट्रिशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अमीबा, राइट. एंडोसाइटोसिस होता है और एक्सोसाइटोसिस होता है. सिमिलरली we know another unicellular organism which is called as paramecium, right. अब ये paramecium दिखता कैसा है, see this is a paramecium, okay. ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है उसका, दिस इज कॉल्ड एज ओरल ग्रूव. ओरल ग्रूव मतलब जहां से फूड पार्टिकल एंटर होता है इनटू द बॉडी ऑफ पैरामेशियम. इट इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन देखिए यहाँ पे उसका जो बाउंड्री है, राइट, बॉडी का, वहां पे बहुत सारे हमको सिलिया दिखाई दे रहे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइट, सिलिया. तो ये पैरामेशियम क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस सिलिया, उसके विसिनिटी में अगर कोई फूड पार्टिकल आता है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिलिया, विद द मूवमेंट ऑफ दिस सिलिया, वो धीरे धीरे वो फूड पार्टिकल को अपने ओरल ग्रूव के पास लेके आता है, और वहां से वो फूड पार्टिकल एंटर होता है इन द बॉडी ऑफ पैरामेशियम. सो और बाकी जो चीजें होती है, जैसे अमीबा में हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स एक्ट करेंगे, फिर डाइजेशन प्रोसेस होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, देन एब्जॉर्ब्ड जो न्यूट्रिएंट्स होंगे दोज विल बी यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द सेल, एंड द अनडाइजेस्टेड फूड विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी. तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा, लेकिन जो वे है टू प्रोक्योर फूड इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अमीबा. अमीबा में सूडोपोडिया स्ट्रक्चर हो रहा था, यहाँ पे जो है विद द हेल्प ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सिलिया, द फूड पार्टिकल इज मूव टूवर्ड्स द ओरल ग्रूव और इट एंटर्स द बॉडी ऑफ पैरामेशियम. देन व्हाट अबाउट ह्यूमन बींग्स? Human beings use their hands to take food into their mouth. So this is how we procure our food. Ruminants मतलब cow, horse, buffalo, वो क्या करते हैं? They pick up food directly into their mouth, है ना. मुंह से डायरेक्टली जो फूड होता है वो उनके मुंह में से ही अंदर जाता है डायरेक्टली, राइट. दे कट द ग्रास विद देयर माउथ, राइट. देन हाइड्रा. अब देखिए हाइड्रा सी द डायग्राम ओवर हियर. हाइड्रा, दिस इज हाइड्रा. उसके टेंटाकल्स होते हैं, तो कोई भी फूड उसके विसिनिटी में जब आता है तो विद द हेल्प ऑफ द टेंटाकल्स इट जस्ट किल्स इट्स प्रे एंड इट मूव्स इनसाइड इट्स this cavity. This is nothing but the mouth of hydra. Okay, then spider. So what does spider do? Spider, it weaves a sticky web in which the small insects gets trapped. वो web बनाते हैं जिसमें छोटे छोटे insects trap होते हैं. Then it travels to that location, spider, right? And then it ingest digestive juices in the body of the insects, right? And then it sucks, enzymes छोड़ते हैं वो prey के body में, और
उसमें से जो जूसेस होते हैं वो सक करते हैं, राइट. देन व्हाट अबाउट फ्रॉग? कोई भी इंसेक्ट उसके विसिनिटी में आता है तो व्हाट इट डज विद द हेल्प ऑफ इट्स स्टिकी टंग, इट प्रोक्योर्स इट्स फूड, राइट. देन इंसेक्ट्स जो होते हैं जैसे बटरफ्लाइज, देन हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज होते हैं, बीज, उनमें क्या होता है, एक ट्यूब होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फीडिंग ट्यूब. सामने की तरफ दिस इज कॉल्ड, सी हियर, दिस इज अ फीडिंग ट्यूब, राइट. यहाँ पे भी ये जो बटरफ्लाई है उसका ये फीडिंग ट्यूब है. और वो करते क्या है, वो फीडिंग ट्यूब को क्या बोलते हैं, इट इज जस्ट लाइक अ स्ट्रॉ ओनली, राइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोबोसिस. और वो करते क्या है, दे सक लिक्विड फूड. जैसे बटरफ्लाइज होते हैं, व्हाट दे डू, नेक्टर सक करते हैं फ्रॉम द फ्लावर्स. तो जो लिक्विड फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर, राइट, या जूसेस होते, फ्रूट होते हैं या फ्लावर्स होते हैं, उनमें से जूसेस वो सक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फीडिंग ट्यूब. सो वी हैव सीन डिफरेंट एनिमल्स and which eat different types of food, and the way they procure their food, the ways are also different. So this is about the nutrition process in different organisms. Thank you.